Hello everyone, how are you all? Once again, I hope you all will be safe at your home. So, this is Tripti Khare, your assistant teacher. Welcome back in my class. So, as we all know that we are coming to complete our chapter according to the section wise, history, geography and the civics. So, now in today's lecture, I will start to teach you civics. Okay, civics your third chapter, it means your 25th number of chapter of the civics section. Okay, so without wasting time, let's start our explanation. Okay, so in the civics section, chapter number 25. Okay, as we have completed in the civics about two chapters, 23rd and the 24th. Okay, so once again I am telling to you in your book, in our page number 11. Page number 11, content have given here history, geography and the civics. Okay, history, geography and the civics. So if you will turn the page, then here social and the political life. It is your civics portion. Okay, so your civics portion. So from the 23rd. Okay, 23rd chapter of civics portion has started. Okay, so as we have completed our 23rd chapter, understanding diversity, है ना? In the another lecture we have completed our 24th number of chapter, prejudice, discrimination and the inequality. Now is the turn of third chapter. It means 25th number of chapter. Okay, what is government? So today I will explain you what is government. Okay, so in this chapter I will explain you according to the topic, that meaning of government, है ना, that functions of government, branches of government, है ना, types of government and the levels of the government, which type of and which level, how many levels it have divided, that levels I will tell you in this chapter. Okay, so let me start our chapter. So the page number 187. Okay, the page number 187 chapter has started, social and the political life. It means civic section. Chapter name is what is government. So let me start. In this chapter we will study about the government is and understand its meaning and the significance. ओके इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसकी सिग्निफिकेंस, मतलब उसकी क्या क्या स्पेशलिटीज है, उससे क्या क्या मिलता है हमें, why it is necessary, why it is important to us, that we have to read in this chapter. Okay, so first is meaning of the government. Okay, meaning of the government I will describe you. So in the ancient time when human being lived as the hunter gatherer, life was simple. However, as people learned to cultivate and the settlements expanded, है ना, लास्ट टाइम में एंशिएंट टाइम में देखेंगे हम हिस्ट्री में अपने पास्ट में, तो जो ह्यूमंस बीइंग थी, जो हम थे ह्यूमंस बीइंग थी, ओके वो क्या करती, हंटर गैदरिंग करती थी, ओके साथ में रहती थी और वो सिंपली अपनी लाइफ क्या कर रही थी, सर्वाइव कर रही थी. ओके, सो एज पीपल हैव लर्न टू कल्टीवेट, जैसे उन्होंने कल्टीवेट स्टार्ट किया है ना, फार्मिंग स्टार्ट की, तो उनकी जो नीड्स है वो क्या क्या होती गई, डेवलप्ड होती गई. उसको सरवाइव करने का जो वे था वो क्या होता गया, डेवलप्ड होता गया था. इसलिए इसको मैनेज करने का जो एक तरीका था, वे था, है ना, जिस टाइप से वो मैनेज करते थे, रूल अपने अकॉर्डिंग बना लेते थे, वो क्या होते गए, डेवलप्ड होते गए. ओके, सो देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट, जो उनकी नीड थी, रिक्वायरमेंट्स थी, वो क्या होती गई, इंक्रीज हो गई. ओके, सो लाइफ बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड द नीड फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम अराउज. तो क्या वो कॉम्प्लिकेटेड होती गई थी, कहीं से हम कल्टीवेट कर रहे हैं, हमें स्टोर करना है, हमें उसको प्रोड्यूस भी करना है ना, हमें उसको सेल करना है, हमें कहीं से उसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है. तो ये सब क्या था, बहुत सारी चीजें क्या हो गई थी, डेवलप्ड हो गई थी. इससे क्या होता था कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड्स आ गए थे. तो इसलिए उनको क्या था, एक रिक्वायर्ड थी कि एक जो लॉ है, एक जो रूल्स है, वो क्या किया जाए, अराउज किया जाए, मतलब कि उसको बनाया जाए, ताकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो अपने जो उनका सिस्टम है ना, जो उनका ट्रेडिंग सिस्टम है, सर्वाइविंग वे है, वो क्या हो सके, एक पर्टिकुलरली वे में क्या हो सके, फॉर्म हो सके, या फिर वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके. ओके, सो a leader on an authority was required to make law for the people to follow and help them achieve their common goals. ठीक है, so either we always had king as a leader. Today all over the world we have different type of government which govern a country. हमारी कंट्रीज में क्या है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है,
सेट करती है ना टाइप्स में। अपने कंट्रीज के अकॉर्डिंग अपनी गवर्नमेंट जो होती है, रूल होते हैं, लॉ होता है, उसको फॉलो किया जाता है। तो जैसे जैसे डेवलप होता गया एंशिएंट टाइम से, वैसे वैसे गवर्नमेंट जो लॉ जो रूल्स थे वो भी क्या होते गए, डेवलप हो चुके। एंशिएंट टाइम में जो किंग्स होते थे, है ना, उनका जो हेरिडिटीज होती थी उसके अकॉर्डिंग वो क्या होते जाते थे, बनते जाते थे। अब क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री हो चुकी है हमारी, हम उसके अकॉर्डिंग लीड करते हैं हमारे लीडर्स को, है ना, हमको इलेक्ट करके उसको चूज करते हैं। तो क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंट्री क्या करती है, अपने अपने गवर्नमेंट को क्या करती है, फॉलो करती है, मतलब जो रूल है, लॉ है, उनको क्या करती है, फॉलो करती है। ओके, सो the government is either a person or a group of the people who are responsible controlling and managing affairs of a country or the state। ठीक है, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, मैनेजिंग करते हैं, है ना, वहां के सिस्टम को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ओके, सो एवरी कंट्री नीड्स सम फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट फॉर सोसाइटी टू फंक्शन स्मूथली। हर कंट्री को, जो एवरी कंट्री होती है, सबको क्या होती है, नीड होती है किस चीज की, एक ऐसे लॉ की, ऐसे रूल्स की जिसमें उसकी कंट्री स्मूथली क्या करती जाए, रन करती रहे या वो चलती रहे। ओके, सो अ गवर्नमेंट प्रोवाइड द सिटीजन अ फ्रेमवर्क विद इन विच दे कैन वर्क टू अचीव देयर कॉमन पर्पस। A government is also which represent the need of the people and they take care of their problems। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, जो पीपल्स की बेसिक नीड्स होती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करना, उसको फुलफिल करना, है ना, गवर्नमेंट ये काम करती है। सो द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट कैन लीड द कॉज कंफ्यूजन एंड द डिसऑर्डर इन द कंट्री। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो डिसऑर्डर हो जाएगा हमारी कंट्री में, कोई भी सिस्टमैटिकली चीज नहीं होगी, है ना, नंबर ऑफ पीपल्स हमारे यहाँ बहुत है, पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत है, तो सब सिस्टमैटिक नहीं रह पाएगा। हम अभी फेस कर रहे हैं गवर्नमेंट एज पर द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट वी फॉलो ऑल द रूल्स whichever order have passed by the government, है ना, due to coronavirus also COVID-19 also we are following the rule which steps are taken by the government, है ना, जो steps लिए गए उनके थ्रू वो हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर ये नहीं होता then what was the condition of our country, क्या होती हमारे कंट्री की कंडीशन, है ना। So we have to follow the rules and the steps whichever have taken by the government, है ना, so that as per that only we will take the decision। So now I hope understood you all will might be you all have understand whatever I have explained meaning of the government, है ना, गवर्नमेंट का मीन क्या होता है। Now your second point is functions of the government। Okay, so functions of the government, okay, the government plays an important role in our lives। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है, इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। ओके, द बेसिक फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्रोवाइड सेफ्टी, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करवाना, द सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन एंड द मेंटेन लॉ एंड द ऑर्डर इन अवर द कंट्री, है ना, मेंटेन करके रखना। लॉ जो होते हैं, पुलिस क्या करती है ना, हमें क्या करती है, अभी हम घर से बाहर निकल रहे हैं, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ड्यू टू द COVID-19, सो पुलिस व्हाट से कि आपको जब भी निकलना है बाहर कैसे निकलना है ना, टू कवर योर बॉडी, है ना, कवर करके निकलना है आपको, यूज द सैनिटाइजर एंड द मास्क। तो ये क्या करती है, मेंटेन करती है, हमारी हेल्प करती है मेंटेन करने में लॉज को, है ना, ये काम गवर्नमेंट्स के होते हैं। ओके, एंड द टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑल इशू रिलेटेड टू द कंट्री डेवलपमेंट, और सारे रिलेटेड जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उसके डिसीजन कौन लेती है, सिर्फ गवर्नमेंट लेती है। अभी हमें यहाँ पे जो COVID-19 से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम, तो इससे जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है किसने लिए हैं, गवर्नमेंट ने लिए, एंड वी हैव टू फॉलो दैट स्टेप्स एंड द रूल्स व्हिचएवर गवर्नमेंट हैव द पास्ट, है ना, जो भी उन्होंने पास किए हैं उसके जो भी स्टेप्स होंगे वो हमें फॉलो करने हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट्स के ये क्या होते हैं, वर्क होते हैं, जो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए वो क्या करती है, बनाती है। ओके, इट प्रोटेक्ट्स, वो हमें प्रोटेक्ट करती है, एंड द डिफेंड द कंट्री फ्रॉम द वॉर एंड द अटैक बाय द एनिमी। कुछ भी अटैक होता है या वॉर होता है तो उसमें वो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट, है ना। इट मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इन अ मैनर एंश्योर बेनिफिट टू ऑल द पीपल, है ना, जो पीपल्स के बेनिफिट के जितने भी डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, उसको लेती है ना। इट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय बिल्डिंग रोड्स, बिल्डिंग हो गई, रोड्स हो गई, है ना, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वेल्स,
जितने भी हैं, बाय प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्ट्स, है ना, फैसिलिटी जो भी प्रोवाइड करवाती है हमें गवर्नमेंट, क्या करती है हमारे लिए वेलफेयर के लिए वो क्या करती है बनाती है, उसको फॉलो करने बोलती है। ओके, इट प्रोवाइड्स रिलीफ मेजर व्हेन द पीपल नेचुरल क्लाइमेट्स और द डिजास्टर्स अकर, है ना, जब क्या होता है कोई भी नेचुरल क्लाइमेट जो मतलब क्लाइमेट जो होता है उससे जो भी डिजास्टर्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, है ना, और जो भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, ठीक है, सुनामीज वगैरह आती हैं, तो इसमें जो भी हमसे हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारे लिए हार्मफुल होती है कोई भी चीज़, हम हमारे लिए क्या हो जाती है, पीपल्स के लिए क्या हो जाती है, बहुत ही खराब सिचुएशन लेकर आती है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए क्या करती है, काम करती है और हमें क्या करती है, हेल्प करती है ना। सो इट मेंटेन फ्रेंडली एंड द पीसफुल रिलेशन विद आवर कंट्री। तो उसके क्या से होते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं अपनी कंट्री के साथ, अपने पीपल्स के साथ, अपनी कंट्री के पीपल्स के साथ, है ना। वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम, सम मेजर प्रॉब्लम, है ना, ऑफ द कोविड-19, तो गवर्नमेंट व्हाट इट्स डूइंग, क्या कर रही है, वो हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रही है, हमें क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है उससे, है ना। तो ये डिसीजंस किसने लिए हैं, गवर्नमेंट ने लिए, एंड वी आर फॉलोइंग दैट। तो गवर्नमेंट के यही फंक्शंस होते हैं, यही उसके क्या होते हैं, वर्क होते हैं। ओके, नाउ थर्ड इज ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स भी उसी को बोलते हैं, ब्रांचेस को भी बोलते हैं। ओके, सो द गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू थ्री मेन ऑर्गन्स टू अटेंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उसके मेन 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। द लेजिस्लेटर इज द लॉ मेकिंग ब्रांच ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट के 3 वर्क होते हैं, ठीक है, ब्रांचेस होती है, फर्स्ट लेजिस्लेटर, देन सेकंड एग्जीक्यूटिव, देन थर्ड जुडिशरी। ओके, थर्ड जुडिशरी। ओके, सो फर्स्ट लेजिस्लेटर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड जुडिशरी, है ना। सो द लेजिस्लेटर इज द लॉ मेकिंग ब्रांच ऑफ द कंट्री, ये क्या करती है, लॉ बनाती है, लॉ प्रिपेयर करती है। ओके, क्या करती है, लॉ बनाती है। It makes law to regulate the behavior of the people and to safety to the general needs of the people। ये क्या करती है, लेजिस्लेशन क्या करता है, अपनी जो गवर्नमेंट का टाइप है ये क्या करता है, लॉ को क्या करता है, बनाता है, और जो भी बेसिक नीड्स होती हैं पीपल्स की, है ना, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने की जो लॉ है वो प्रिपेयर करता है। ओके, The executive is a branch that makes sure that the laws are enforced, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव होती है ये क्या करती है, जो लेजिस्लेचर क्या करता है, जो लॉस बनाता है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उसको देखती है कि हाँ ये करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, तो ये इसको आगे बढ़ाने का काम क्या कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है, उसको और आगे बढ़ाता है कि हाँ इट इज गुड लॉ विच इज बेनिफिशियल फॉर द पीपल्स, है ना। एंड the judiciary is a branch that ensure the government function according to the law and protect people against unjust rule, ठीक है, और जुडिशरी का क्या काम होता है, जो भी अनफेयरली बिहेवियर होता है हमारे सोसाइटी में उसको उसके लिए जो जस्टिस का काम होता है वो जुडिशरी का होता है, ठीक है, जो हमें क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे लिए फेयरली डिसीजन देता है, ठीक है, हमें सही डिसीजन बताता है, ये जुडिशरी का काम होता है। ओके, सो हियर branches of the government, so 3 type of the branches have of the government, first legislature, second executive, third judiciary। legislature क्या करता है, laws बनाता है, prepare करता है basic requirements को fulfill करने के लिए, executive उसको वो करता है, चेक करता है कि ये सही है कि नहीं और उसको आगे बढ़ाता है, देन जुडिशरी वो हमारे लिए क्या करता है, अनफेयरली जो भी बिहेवियर होता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें फेयर एक डिसीजन प्रोवाइड करता है। ओके, now here type of the governments, now we will read about the type of governments, so type of government or the levels of the government। okay, here levels of the government and afterward type of the government we will read। so level of the government in India, so every country has a different from the structure of government depending on its size, structure and the population। सब कंट्रीज जो है डिफरेंट कंट्रीज जो है वो क्या करती है, अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती है गवर्नमेंट, है ना, उसी को फॉलो करती है। ओके, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, हमारे पास जो स्टेट्स है यूनियन टेरिटरीज हमारे पास वास्ट पॉपुलेशन है, बड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, फंक्शंस को हेल्प करती है और उसके अकॉर्डिंग जो नीड्स है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो पीपल्स की नीड्स हैं, है ना, रूल्स हैं, जो लॉस वो प्रिपेयर करती है उसको क्या करती है, आगे बढ़ाती है, स्प्रेड करती है। ओके,
There are three level of the government in the country. There are also three level of the government. हमारे पास three level है government के. Let's we will read about it. The union और central government. Okay, the union and the central government. सबसे पहले होती है union या फिर central government जिसको बोलते हैं. ठीक है. It is located in the New Delhi. Okay, न्यू दिल्ली में है. It is the highest level of the government. ये क्या होती है? highest level होता है ये government का सबसे ऊपर वाला. Okay, and the government with the function at the national level. ये जो होती है न्यू दिल्ली में जो लोकेटेड है ना यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नेशनल लेवल पे क्या करती है? डिसीजंस को लेती है. ओके, जब कंट्री की बात आती है अपनी होल कंट्री के लिए. ओके, नाउ सेकंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट. फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट. ओके, इट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. ये अगला लेवल है इसका. विच इज देयर इज एवरी स्टेट. द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन as well as the law and the order of that particular state. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? जो एडमिनिस्ट्रेशन से लॉ हमको पास होते हैं, इट मींस जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉज देती है, रूल्स देती है, उसको वो फॉलो करती है. प्लस अपने स्टेट्स के कुछ लॉज जो है वो खुद भी क्रिएट कर सकती है. अथॉरिटी उनको प्रोवाइड की जाती है ना. जैसे अभी जो भी प्रॉब्लम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके डिसीजंस ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेती. बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो अपने स्टेट की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस को क्या कर सकती है? ले सकती है. लिए गए हैं. कुछ स्टेट्स ने लॉकडाउन बढ़ा दिया तो उन्होंने स्टेट लेवल पे डिसीजंस लिए. ठीक है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पीएम ने हमें जो दिए हुए हैं डिसीजंस दिए हैं